Hello students, am I audible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. good, good, good. So please mute yourself and don't disturb the lecture. If you have any question, however, you can ask anytime. Aman Kumar Singh, any doubt? No, sir. No, sir. Okay. गलती से हो गया. So, koi nahi. Let's start this lecture. So, what we have done till now in first lecture, so we have learned that how can we find two important forms with Sir, respect to any matrix. सर रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए. Recording start है. Recording start hai already. So how can we find REF and RREF for any given matrix A? And we use type 1, type 2, type 3 row operations to find these important forms. Okay. Then in first lecture, based on first lecture, we have learned three important things. What is rank, row rank, and column rank. Okay. And then one important thing also for any matrix is correct that rank is equal to column rank is equal to row rank always. Okay. Now in second lecture, we have learned that any linear any matrix can be seen as a linear transformation. And I said in last lecture that now onwards always try to visualize a matrix. If you see somewhere any matrix as a linear transformation, so matrix is not just only arrangement of numbers in rectangular array. So it is a linear transformation. And what is domain, what is codomain, it must be clear to all. We have given enough time on this on the discussion of this thing, that uh, A is a linear transformation. I have given you some examples also. And in the next week we will also prove. So what we have done in last lecture, that every matrix can be seen as a linear transformation. And what we will prove in coming week, that every linear transformation is a matrix. So that means there is one onto map between the set of all matrices, and there is this linear transformation. For each matrix there is a linear transformation, for each linear transformation there is a matrix. But before all these things related to linear transformation, or to study a linear transformation in more detail, what I want to give you, that corresponding to any matrix, when you see that matrix as a linear transformation, domain and codomain can be divided into two subspaces. Okay. And thus there are total four subspace. Those are very important related to any matrix. First one, in domain we have row space and null space, and in codomain we have column space and left null space. And what is the definition of row space? It is a span of rows. Column space, it is span of columns. Null space is the collection of all x in domain such that ax is equal to 0. And what is left null space? Collection of all x in codomain, remember, such that A transpose x is equal to 0. So left null space is null space of A transpose. And now what is the topic of today's lecture? That how can we write basis of four fundamental subspaces related to any matrix A. So let me write here. We have done one example. So let me write from lecture 1. This A. A is 1332. A is 1332. Then second row is 2697. 2697. Third row is -1 -3 3 4.
-1 -3 3 4. So this is matrix A. Can you see its REF? This is REF. We have already derived. So REF is 1 3 3 2. 1 3 3 2 0 0 and then 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0. This is REF. And ये दो जो है ना थे हमारे, these two are pivots. Okay, this is REF of A. And for this matrix A, this is RREF. RREF was, if you see here, RREF was 1 3 0 minus 1, 1 3 0 minus 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 0 0, and pivots positions are these. देखिए RREF की एक पहचान है, ठीक है. In RREF, at the bottom of the matrix there will be 0 rows. Okay, जितनी भी जीरो रोज होंगी वो मैट्रिक्स में नीचे होंगी, नॉन जीरो रोज ऊपर होंगी. नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो. ओके, और जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं, देखिए यहाँ पे जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं, केवल लिसन केयरफुली, जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं उसमें केवल वो कॉलम देखिए जहां पे पिवोट है, और कुछ नहीं देखना है ना. ओके, केवल वही कॉलम देखने हैं नॉन जीरो रोज में जहां पे पिवोट है. लेट मी टेल यू. सो केवल वही पिवोट वही कॉलम देखने हैं जहां पे पिवोट है. तो ये मैट्रिक्स जो है केवल इस रेड एरिया के अंदर जो मैट्रिक्स है, व्हाट इज दिस मैट्रिक्स? एनी स्टूडेंट? इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. गुड. सो दिस इज one way to recognize this RREF. RREF में यदि आप केवल पिवोट रो और पिवोट कॉलम देखेंगे तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए. हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड वी विल यूटिलाइज दिस इन टुडेज लेक्चर. ओके, फाइन. हमेशा मिलेगा आपको. देखो क्यों मिलेगा? क्योंकि पिवोट को 1 करना है और पिवोट के नीचे भी 0, ऊपर भी 0. तो केवल पिवोट रोज पिवोट कॉलम्स को देखेंगे RREF में तो हमको क्या मिलेगा? हमेशा आइडेंटिटी. हमेशा याद रखना. अच्छा, कोई मैट्रिक्स यदि यहाँ पे एक चीज हमने लिखी थी, यहाँ पे नंबर ऑफ पिवोट्स इज इक्वल टू व्हाट? Number of pivots is equal to rank of a matrix. This is equal to row rank of a matrix, and this is the same as column rank of a matrix. What do you mean by row rank? Number of Li rows in A. Okay, and column rank का मतलब क्या होता है? Number of Li columns in A. So यहाँ पे इस रिजल्ट से हमको क्या मिला? What is the conclusion? What is rank? So you have now another definition of rank. एक रैंक की डेफिनेशन आपने स्कूल में पढ़ी थी, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है. सो एक दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि रैंक इज नंबर ऑफ पिवोट्स इन REF. नंबर ऑफ पिवोट्स इन REF और RREF. और एक डेफिनेशन इस पूरे कंक्लूजन से क्या है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन एनी मैट्रिक्स. रैंक क्या होती है? मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी Li रोज
होगी, और नंबर ऑफ एलआई रोज हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स के, बिकॉज number of li rows is row rank, number of li column is column rank, and in a matrix both are same. Clear? So rank की एक डेफिनेशन स्कूल में पढ़ी थी, दूसरी डेफिनेशन रैंक इज नंबर ऑफ पिवोट्स इन आरईएफ, तीसरी डेफिनेशन रैंक, what is the meaning of rank? If somebody asks that what is the meaning of rank, so you may always say that rank of a matrix means number of linearly independent rows or number of linearly independent columns in that matrix. Clear? Yes, no, bolo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. और एक जो इंपॉर्टेंट पहचान है उसकी आरआरईएफ की, कि इफ यू लुक एट ओनली पिवोट रोज एंड पिवोट कॉलम्स, और कुछ नहीं देखना, केवल पिवोट रोज पिवोट कॉलम देखने हैं, वो भी नॉन जीरो रोज में, ठीक है, जीरो जीरो जो रोज हैं वो देखनी ही नहीं है, ठीक है, तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखना चाहिए वहां पे। ओके फाइन, सो दिस इज आरआरईएफ ऑफ ए, ठीक है, ये हमारा ए था, ये हमारा आरईएफ ऑफ ए है, और ये हमारा आरआरईएफ है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। अभी हमको सबसे पहले निकालना है रो स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ ए। रो स्पेस क्या होगा किसी भी मैट्रिक्स का? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था कि जब मैं कहूं हमेशा, ठीक है, हमेशा जब भी मैं स्पेस की बात करूं ना, कि स्पेस निकालिए, स्पेस लिखिए, देखो स्पेस में, सब स्पेस में हमेशा इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ऋषभ, हेलो ऋषभ, हेलो, so when I say that you calculate a space, that means you have to write its basis, ठीक है, fine. So basis of row space, so row space की basis हम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना, देखिए जब हम बेसिस लिखते हैं ना, या कोई भी सेट लिखते हैं वेक्टर्स का, तो हम वेक्टर्स को बाय डिफॉल्ट हम कॉलम वेक्टर लिखते हैं। When we write a set of vectors, that means by default we write vectors in column form, ठीक है, कभी भी रो में नहीं लिखते। जब हम रो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा, that means we will use the transpose operation. So basis of a row space, क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा, जब बेसिस लिखते हैं ना रो स्पेस की, so you see REF और RREF, कोई भी देख सकते हैं, आरईएफ भी देख सकते हैं, आरआरईएफ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिस में पहले बताओ कि कितने एलिमेंट होंगे, इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज व्हाट? बताओ कोई भी सोच के। सारी रोज का स्पैन क्या होता है? बेटे सारी रोज के स्पैन को क्या बोलते हैं? रो स्पेस, ठीक है, यही तो डेफिनेशन है ना रो स्पेस की। तो एक सब स्पेस होगा। अब किसी भी मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हो सकती हैं? बताओ, अभी तो बताया था 2 मिनट पहले। किसी भी स्पेस में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हो सकती हैं? जितना की रो रैंक हो, और रो रैंक कितनी होती है? जितने की पिवोट्स हैं, और वही तो डायमेंशन होगी ना, वही तो डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस मींस व्हाट? रो रैंक। रो रैंक को ही डायमेंशन ऑफ रो स्पेस बोलते हैं। रो रैंक इस मैट्रिक्स की कितनी है? बोलो जल्दी बेटा। 2 सर।
2, ओके, क्योंकि 2 पिवोट है आरईएफ में और आरआरईएफ में। इसका मतलब इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, कितने वेक्टर होंगे? रो स्पेस की बेसिस में कितने? 2, क्योंकि बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उसी चीज को तो डायमेंशन बोलते हैं। So there will be two elements in any basis, कोई भी बेसिस हम लिखेंगे तो 2 ही एलिमेंट लिखने पड़ेंगे हमको, and both vectors must be li. अब देखो एल्गोरिथम, as I said, what is our important aim? Here we are giving more time on theory, but important aim is to that how can we instruct our computer? If we want to write our own program, how can we how can we instruct our computer that how can our computer capture our this basis of a row space if A is given? So देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, REF और RREF के जो पिवोट रोज हैं उनको लिख देना है 1 3 3, क्योंकि वही LI है। देखो इसका मतलब क्या है, REF की एक रो जो 0 है ना, इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो थर्ड रो है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 रो आई, ये जो रो है ये इन दोनों रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है, क्योंकि इन्हीं दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से 0 हमने क्रिएट किया है ना यहाँ पे। That means if you revert the operations, that means this row can be written as a linear combination of these first rows. So that means third row is linearly dependent, sorry. So 0 rows के corresponding जो रो है A में, वो एक्चुअली LD होती है उन रोज के जहां पे पिवोट है REF में। REF में पिवोट कौन कौन सी रोज में है? फर्स्ट और सेकंड। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में फर्स्ट और सेकंड रो हमेशा LI होंगी और बाकी की रोज LD होंगी इन दोनों पे, ठीक है। सो हाउ कैन वी राइट बेसिस ऑफ ए रो स्पेस? फोकस हियर, यू हैव टू जस्ट राइट द पिवोट रोज इन REF 0 0 3 3, ठीक है। और देखो किसी भी स्पेस की बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं, एक बेसिस ये भी तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट दीज पिवोट रोज फ्रॉम RREF 1 3 0 -1 एंड 0 0 1 1। ये मैंने क्या लिखी, एक तो ये रो लिखी है, एक ये रो लिखी है, ये 2 रो लिखी है। और तुम जो है ना ओरिजिनल मैट्रिक्स में भी जा सकते हो। ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या करो, ओरिजिनल मैट्रिक्स में आप पिवोट रोज के कॉरस्पॉन्डिंग जो रोज हैं, यू कैन राइट दोज रोज आल्सो। पिवोट रोज कौन कौन सी हैं REF और RREF में? फर्स्ट 2। तो फर्स्ट 2 जो रोज हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स की 1 3 3 2 2 6 9 7, एक बेसिस तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देखो डायमेंशन फिक्स रहती है हमेशा, लेकिन बेसिस तो बहुत सारी हो सकती है ना किसी भी स्पेस की। जैसे कि R2 की एक बेसिस हमने लास्ट टाइम देखी 1 0 0 1, दूसरी बेसिस में तुमको दे सकता हूं 1 1 1 2। कोई भी 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इफ यू राइट इन a set, then in R2, then that set will become a basis. So there are infinitely many bases corresponding to of any space or subspace, लेकिन डायमेंशन उसकी हमेशा 2 ही रहेगी। सो किसी भी सेट में जो 2 एलिमेंट LI लिख रहे हो और वो पूरे को जनरेट कर रहा है, दैट इज बेसिस। सो नाउ आई रिपीट, conclude the thing. Conclusion is the following. Remember, if you want to write a row space of any matrix A, that means a basis of row space of any matrix A, what is the algorithm? You first compute REF or up to RREF, that is your choice कि आप RREF तक जाना भी चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। REF is sufficient. Please mute yourself. So calculate REF at least, okay? और REF में देखो कि पिवोट कहां पे हैं, पहली रो में है और दूसरी रो में है, वे दोनों रो लिख दीजिए इस सेट में। दिस सेट विल बिकम अ बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। लेकिन यहां पे क्या है कि एक फ्रीडम है,
आप ये दो रो भी लिख सकते हैं, आप यदि RREF तक चले गए तो ये दोनों रो भी लिख सकते हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो दो रो हैं वो भी लिख सकते हैं। वाई यहां पे ऑप्शन है हमारे पास, तो 3 बेसिस तुम आराम से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज सी वाई वी हैव दिस फ्रीडम, बिकॉज रो ऑपरेशंस डू नॉट चेंज रो स्पेस। देखो ये जो दो रो हैं ये हमने कैसे बनाई, इन 3 रो से लीनियर कॉम्बिनेशन से। ये जो दो हैं ये कैसे बनाई, लीनियर कॉम्बिनेशन से। सो ये भी उसी स्पैन के 3 रो हैं जो स्पैन ये 3 रो जनरेट करेगा। सो रो ऑपरेशंस, how we have calculated REF or RREF? By using row operations. Row operations do not change the row rank, do not change span, means span of these 3 rows is the same as the span of these 3 rows. There is no doubt in that, because we are using row space. ये जो दो रो हैं ये कैसे हमने निकाली इन 3 rows से, केवल linear combination से, कुछ नहीं किया और। So if you want to write a basis of row space, what is the algorithm? You can write pivot rows from REF, you can write pivot rows from RREF, और जिन रोज में पिवोट हैं REF में और RREF में उनके कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स की दो रो आप लिख सकते हो, ये भी एक बेसिस है। नाउ सी कॉलम स्पेस, column space of any matrix A means basis of column space। कॉलम स्पेस की बेसिस कैसे लिख सकते हैं, पहले तो बताइए इसमें कितने एलिमेंट होंगे, कॉलम स्पेस की बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, मींस डायमेंशन पूछ रहा हूं मैं, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस कितना होगा, 2। क्यों क्यों, क्योंकि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस होता क्या है, कॉलम रैंक, डायमेंशन कॉलम ऑफ रैंक, स्पेस। गुड, कॉलम रैंक, और कॉलम रैंक यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि कॉलम रैंक रो रैंक हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। अभी देखो कॉलम स्पेस की बेसिस कैसे लिख सकते हो, REF तक तो निकालना पड़ेगा आपको। If A is given, you have to calculate REF at least. See in which columns you have pivots. See in which columns you have pivot. So pivots are in first column and third column. Now go back in original matrix and write the first column and third column, means columns corresponding to the pivot columns in REF. So 1, 2, minus 1, 1, 2, minus 1, that is first column in original matrix, and 3, 9, 3, 3, 9, 3, ये दो कॉलम हमने लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि बाकी के बचे हुए जो दो कॉलम है बेटा, ये और ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों इन दोनों कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखे जा सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर, लेकिन लिखे जा सकते हैं, यही मीनिंग है। और यहां पे आपको फ्रीडम नहीं है, कॉलम स्पेस में आप ये दो कॉलम नहीं लिख सकते, रो स्पेस में आपके पास फ्रीडम था, रो स्पेस में आप बेसिस जब लिखते हैं ये नहीं लिख सकते कॉलम स्पेस में। कॉलम स्पेस में आपको केवल ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही कॉलम लिखने पड़ेंगे, और कौन कौन से कॉलम लिखने पड़ेंगे, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पिवोट्स है REF में या RREF में। क्यों, क्योंकि बेटा हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दीज फॉर्म्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, नॉट बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस केवल रो स्पेस को ही प्रिजर्व करती है, कॉलम स्पेस को प्रिजर्व नहीं करती है। सो यू हैव टू राइट कॉलम्स फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स A ओनली। तो यहां पे आपके पास फ्रीडम नहीं है, केवल एक ही बेसिस आप लिख पाएंगे, दूसरी नहीं लिख पाएंगे। रो स्पेस जब लिखते हैं हमारे पास फ्रीडम है, आइदर यू कैन राइट 2 rows means pivot rows from REF, either you can write pivot rows from RREF, or either you can write rows from the original matrix corresponding to the pivot rows in REF or RREF। अभी बताइए, कोई भी एक स्टूडेंट माइक ओपन कीजिए और पूरा एल्गोरिथम मुझको बताइए कि यदि एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप रो स्पेस की बेसिस कैसे निकालेंगे और कॉलम स्पेस की बेसिस कैसे निकालेंगे। यस सर, मैं टेल सम। एक सेकंड, कोई भी एक
यस सर। सर बेसिस ऑफ रो राहुल, स्पेस निकालने के लिए who is सर speaking? हम आलोक मिश्रा सर। आलोक मिश्रा, बोलिए बोलिए बेटा। यस सर। सर बेसिस ऑफ रो स्पेस नहीं है, उसके सर डायमेंशन दोगी पहली बात, और उसके सर रो स्पेस के लिए बेसिस हम लोग 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पहले तो आर ई एफ से, दूसरा आर आर ई एफ से, आर आर ई एफ के जो पिवोट है उस कॉलम मतलब रो के, और तीसरा ओरिजिनल मैट्रिक्स से। और बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस लिखने के लिए उसकी डायमेंशन 2 होगी, उसको केवल हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही पिवोट वाले कॉलम को ही केवल लिख सकते हैं। दैट्स ऑल सर। मैं बेटा किसी भी मैट्रिक्स के लिए पूछ रहा हूँ, इस मैट्रिक्स के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। तो कि डायमेंशन कितनी होंगी? जितने की पिवोट है। यस सर। हाँ, राहुल राज। यस सर। हाँ बोलो बेटा, कैसे निकालेंगे? बोलो कैसे सर निकालेंगे? पहले मैट्रिक्स का आर ई एफ या आर आर ई एफ निकालेंगे, फिर गुड। उसमें जो नॉन जीरो रो बची है वो रो स्पेस का बेसिस बनाएंगे, है कुछ ना। नहीं है, कैसे लिखेंगे? उन सारी रोज यस को लिख सर। देंगे जहां जिनमें की पिवोट है, और यस सारी सर। नॉन जीरो रोज में पिवोट है। यस सर। नेक्स्ट, कृति। कृति, कृति सैनी। कृति सैनी। सत्यवान कुमार। यस सर। हाँ बोलिए बेटा। सर आज थोड़ा मेरी तबीयत खराब है। हाँ सत्यवान, क्या बोल रहे बेटा? कुछ नहीं सर। नहीं, कैसे, क्या 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 सीखा अभी तक, ये बताओ ना। सुबह से अभी तक क्या सीखा? आधा घंटे में, पौना घंटे में? आशीष नारायण। यस सर। या प्लीज। सर सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए मिलेगा, उसका हम लोग रो इक्लियन फॉर्म और रो रिड्यूस इक्लियन फॉर्म निकालेंगे रो ऑपरेशन के थ्रू। फिर उस आरईएफ और आरआरईएफ में जितने भी पिवट्स मिलेंगे वो हम लोग के डायमेंशन हो जाएंगे, और बेसिस ऑफ रो स्पेस इज इक्वल टू जितने भी पिवोट्स होंगे उस रो के थ्रू वो होंगे, बेटे वो और बेसिस डायमेंशन ऑफ होती है कॉलम। नंबर। देखो, बेसिस हमेशा सेट होता है और डायमेंशन एक नंबर होता है, ध्यान रखो ना। बेसिस बेसिस ऑफ रो स्पेस इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज ए नंबर सेट। ऑफ पिवट्स। नहीं बेटा, नंबर ऑफ, फिर गलती कर रहे हो। बेसिस कह रहा हूं मैं। बेसिस नंबर इज ऑफ इक्वल टू एलिमेंट्स इन बेसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिवोट्स। अच्छे से बोलो, ठीक है? समझ में आ गया तुमको? अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, लेकिन बोलो अच्छे से ना। यस सर, सॉरी। बेसिस तो एक सेट है ना, बेसिस को आप नंबर कैसे बोल सकते हो? सो बेसिस of row space is a set that contains pivot rows in REF or RREF, or the rows corresponding to the pivot rows in the original matrix. ये एक सेट है, ठीक है? एंड इफ आई आस्क व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, तब ये एक नंबर आएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिवोट्स इन REF और RREF.
अमन कुमार सिंह, अमन कुमार सिंह, यस सर। बोलिए। सर करेंटली हम ट्रैवलिंग कर और क्लास कर रहे हैं सर, तो लिखे नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। 1-2 मिनट तो बोल दीजिए, क्या समझ में आया? सर पहले हम लोग एक मैट्रिक्स लेंगे, फिर उसका आर आर ई एफ निकालेंगे, आर ई डी एफ निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? सर शाम वाले क्लास में एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से सर, लिख के मतलब नोट्स बना के। बेटा शाम को क्लास नहीं होती, अब सब क्लास सुबह को शिफ्ट कर दी गई हैं, पता है ना? नो सर। हाँ, इस ग्रुप की क्लासेस बेटे मॉर्निंग में होंगी, मंडे थर्सडे 8 to 10। ओके सर। सभी को दिख रहा है ना अपने टीम्स में? सो आई हैव Yes, sir. चेंज द शेड्यूल। यस सर, इस ग्रुप दिख की रहा जो है। 102 की Yes, क्लास sir. होगी वो मंडे थर्सडे Yes, sir. मॉर्निंग 8 to 10। So I hope now it is clear that how can we compute this is very easy thing. A basis of row space and column space. कॉलम स्पेस की बेसिस कैसे निकालेंगे? कोई एक बच्चा अच्छे से बताया नहीं हमको, कोई भी एक बच्चा बताइए। अंकित कुमार। सर आरआरईएफ में, सर आरआरईएफ में जो पिवोट कॉलम है, अंकित कुमार, अंकित कुमार, अंकित कुमार तो लीव ही कर गए। नहीं, आई थिंक ही अंकित, कैन यू स्पीक? अनुभव यादव, पीयूष राज, बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बता रहा हूं मैं तुमको। सो यू कैन स्पीक, यू कैन यूज एनीथिंग, आइदर इंग्लिश और हिंदी। कम से कम बात तो करो ना। नाम लेता हूँ ये मतलब गायब, मीटिंग से ही गायब। कब तक गायब सर होगे? हम बताएं? प्लेसमेंट में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो गायब, रूम छोड़ के भाग जाओगे? ऐसे कुछ नहीं होगा बेटा। यस, कौन बता रहा था? आलोक। सर यस सर। यस यस, बोलो बेटा। सर कॉलम स्पेस निकालने के सर पहले बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस निकालने के लिए उसका डायमेंशन सर फाइंड, डायमेंशन इसका सर 2 होता है। टू मतलब नहीं होता बेटा, नंबर ऑफ पिवोट्स होता है। हाँ सर, नंबर ऑफ पिवोट्स जो होते हैं सर हाँ, इसमें तो 2 होते हैं। अभी तो मैं केवल इस मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा ना, किसी भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। यस सर, यस आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स में। और उसके सर जो ये लिखा जाता है मतलब क्या कहते हैं बेसिस जो लिखे जाते हैं सर, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से, ओरिजिनल मैट्रिक्स के सर पिवोट वाले कॉलम लिखे जाते हैं। हाँ, ओरिजिनल मैट्रिक्स में वो कॉलम जो कि पिवोट्स कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और पिवोट्स कॉलम हमें कहाँ देखने हैं? आइदर आरईएफ और आरआरईएफ। यस सर, यस। So what is the conclusion? To calculate, to find a basis of row space और column space, हमको एक्चुअली आरआरईएफ की जरूरत ही नहीं है, आरईएफ ही सफिशिएंट। ठीक है,
Yes, sir. आरआरईएफ तक जाने की जरूरत नहीं है। देखो आरआरईएफ तक जाने के लिए हमको आरईएफ एक बार निकाल लिया हमने तो हमको इतना ही काम और करना पड़ेगा लगभग जितना आरईएफ निकालने के लिए किया, बिकॉज वी हैव टू मेक ऑल पिवोट्स 1 एंड वी हैव टू क्रिएट 0 इन द पिवोट कॉलम्स अबव द पिवोट। ठीक है, ओके फाइन गुड। अभी 15 मिनट में हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा स्पेस पढ़ेंगे और वो है नल स्पेस। null space, how to find basis of null space। देखिए बेटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से भी ज्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट तो दोनों है, मतलब पर्टिकुलरली इन कंप्यूटेशन। ओके, नल स्पेस। नल स्पेस को अगर ध्यान से समझ लोगे तो लाइफ तुम्हारी थोड़ी आसान हो जाएगी। और वही समझना, ऐसे ही समझना जैसे मैं समझाऊंगा, ठीक है? इधर उधर से पढ़ने की कोशिश नहीं करो नल स्पेस को, ठीक है? जैसे मैं बताऊं ऐसे ही समझने की कोशिश करना अभी। एंड ट्राई टू राइट द एल्गोरिथम इन द सिमिलर वे इन 106, ठीक है? 106 में जो लैब है उसमें ऐसे ही प्रोग्राम बनाओ नल स्पेस का, जैसे मैं समझा रहा हूं। देखो क्या है, ए मैट्रिक्स ये है, इधर इधर मैं देख लेता हूं आपका। ए मैट्रिक्स आपका ये है, ठीक है? ये इसकी आरईएफ है और ये इसकी आरआरईएफ है। एक बार ए मैट्रिक्स क्या था? 1। नल स्पेस होता क्या है पहले ये बताओ, एक बार बता दीजिए पहले। नल स्पेस क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। फाइन? यस सर। ओके, अभी मैट्रिक्स ए क्या है? 1 3 3 क्या था? 1 3 3 2, then 2 6 9 7 2 6 9 7, good, minus and 1 then minus 3 3 4 good, -1 -3 3 4, थैंक यू। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स था। अब हमको ऐसे एक्स निकालने हैं कि ये मैट्रिक्स इंटू एक्स 0 हो जाए, ऐसे वेक्टर एक्स निकालने हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ नल स्पेस। सो दैट मीन्स व्हाट? एक्स तो क्या है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, x1 x2 x3 x4, क्योंकि इसमें 4 कॉलम है तो x4 कहां पे होगा, x वेक्टर कहां पे होंगे, R4 में, इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स व्हाट? देखो बेटा, ये हमको निकालना है, हमको ऐसे x1 x2 x3 निकालने हैं कि x1 + 3x2 + 3x3 + 2x2 2x4 इज इक्वल टू 0, 2x1 + 6x2 + 9x3 + 7x4 is equal to 0, -x1 -3x2 + 3x3 + 4x4 is equal to 0। ठीक है बात? हमको यही सिस्टम सोल्व करना है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी इस मैट्रिक्स की आरईएफ बताओ मुझको क्या है? 1 3 3 2, ओके, sir 0 0 3 3 गुड। 0 0 0 0 देखो, और ये 3 रो हमने कैसे निकाली बेटा? इन 3 रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से। yes sir ओके, अब हमको एक्चुअली ये 3 इस सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए। वी वांट सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, इवन एलआई सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिस ओनली। ठीक है, फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन solution of this system. Now what is my claim? Solution of this system is exactly same as the solution of this system। इस सिस्टम के corresponding सिस्टम लिखिए, इस A के corresponding इस मैट्रिक्स से corresponding सिस्टम लिखिए, x1 + 3x2 + 3x3 + 2x4 is equal to 0 and 3x3 + 3x4 is equal to 0। जो मैं लिख रहा हूं बेटे समझ में आ रहा है ना? yes sir
यस सर। Yes, sir. ये दो इक्वेशन मैंने इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिखी और ये तीन इक्वेशन इस मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग लिखी। राइट हैंड साइड में जीरो ही है, ये जीरो। ठीक है। नाउ व्हाट आई एम क्लेमिंग दैट सॉल्यूशन ऑफ दीज three equations is exactly same as the solution of these two equations. क्यों? देखो बेटे, इस रो में 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो तो यही आएगी ना। ऐसे ही निकाला था ना हमने ये मैट्रिक्स। Yes, sir. Yes, sir. और फिर कुछ कुछ हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तब ये तीसरी रो जीरो हो गई थी। तो जब हम इक्वेशन देते हैं, याद करो ना, दो पेंसिल 4 इरेजर इतने रुपए की आती हैं, तो और 5 पेंसिल 6 इरेजर इतने रुपए की आती हैं, तो एक पेंसिल 1 इरेजर कितने रुपए की आएंगी। ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालते थे? एलिमिनेशन से। यदि हम कोई रो, if we are trying to solve a linear system, that what we do? Elimination means what? How we eliminate the variables? किसी इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो ये जो करते हैं, that means what? See, technically, numerically, what we are doing, we are only using row operations, either type 1, type 2, type 3. वो इंपॉर्टेंट है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हम उन्हीं रो ऑपरेशन से रो के साथ हम जो है रो को हम जो है कैसे भी रो ऑपरेशन लगा के दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, और जो सिस्टम आसान होता चला जाता है। यही करते हैं ना। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? आई होप नाउ इट इज क्लियर that claim is correct. And what was the claim? That solution of this system is exactly same as the solution of this system. क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. गुड। Yes. अब इस मैट्रिक्स का RREF मुझको बता दो। 1 Sir, 1 3 0 0 minus 1 0 0 1 1 0 0 0 0। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग जो देखो, REF भी कैसे निकाली? रो ऑपरेशन से। RREF भी रो ऑपरेशन से निकाली। तो इस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस आएंगी वो क्या आएंगी? x1 plus 3x2 minus x4 is equal to 0, x3 plus x4 is equal to 0। अभी मेरा क्लेम जो है बढ़ता जाएगा। अभी मेरा क्लेम क्या है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन, इस सिस्टम का सॉल्यूशन, इस सिस्टम का सॉल्यूशन सेम है, क्योंकि ये दो इक्वेशन भी मैंने कैसे निकाली? इन्हीं तीन इक्वेशंस को प्लस माइनस करके। मैंने कुछ नहीं किया। और जब इक्वेशंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करते हैं तो सॉल्यूशन चेंज नहीं होता, बिकॉज दैट यू आर डूइंग सिंस क्लास 6। रो ऑपरेशंस डज नॉट क्लास, मतलब 6 शायद 6 से भी पहले से करते आ रहे हो ना इस काम को। तो स्कूल में से करते आ रहे हो ना? यस सर। प्राइमरी Yes, स्कूल में yes. स्टार्ट हो गया था शायद ये कहानी ना। सो रो ऑपरेशंस does not change solution. This is important. ठीक है। अभी Yes, तुम ये sir. बताओ कि तुमको ये सिस्टम सोल्व करना आसान रहेगा कि ये रहेगा कि ये रहेगा? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला। क्यों? थर्ड नंबर। सिस्टम हमेशा वो आसान रहता है जहां पे जीरो ज्यादा हो। ठीक है, जितना भी स्पार्स सिस्टम होगा वो सोल्व करना आसान रहेगा। ठीक है, फाइन। Yes, sir. ठीक है, अभी एक थ्योरम मैं लिख रहा हूं, ठीक है, उसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। ठीक है, थ्योरम है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक तो तुमको पता है क्या होता है? मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ Pivots. गुड। दूसरी डेफिनेशन बताओ रैंक की। Row rank. रो रैंक। गुड। तीसरी बताओ। Column rank. कॉलम रैंक। रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक। और बताओ, चौथी बताओ।
रैंक से क्या समझते हो? रो रैंक को एलोबरेट कर दो ना. व्हाट इज रो रैंक? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज. यस सर. व्हाट इज रैंक? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स. कितनी सारी डेफिनेशन होगी? 5-6 डेफिनेशन तो ही है. यस सर. और एक डेफिनेशन Yes, तुमको sir. स्कूल से भी पता होनी चाहिए. ठीक है. यस सर। यस वो सर. माइनर भी निकाल देते ना, नॉन जीरो माइनर. ठीक है, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे. तो रैंक नलिटी थ्योरम. नलिटी क्या होती है किसी मैट्रिक्स की? नलिटी किसी मैट्रिक्स की क्या होती है? जीरो। नलिटी Zero, होती है बेटे, नलिटी होती है बेटे किसी भी मैट्रिक्स का डायमेंशन नल स्पेस का. देखो, रो स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? रो रैंक. यस और नो Yes, sir. बोलो जल्दी जल्दी. Yes, sir. यस सर. रो स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? रो रैंक. रो रैंक होती है रैंक. सो ऑल आर सेम. नाउ Yes, व्हाट इज sir. द नेम फॉर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस? नल Nullity. स्पेस की डायमेंशन को क्या बोलते हैं? नलिटी. Nullity. ठीक है. So if Yes. A belongs to R M cross N means A M cross N का मैट्रिक्स है, तो A जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कहां से कहां तक होगा? डोमेन क्या होगा A A का? So N से M. RN to RM. ओके, ठीक है, फाइन. If A belongs to R M cross N, then rank plus nullity is equal to N. This is the statement of rank plus nullity theorem. Okay. So rank plus nullity is equal to N. तो rank यदि R है, if rank is R, so what is nullity? N minus. Then nullity means dimension of null space कितना हुआ? Domain of N Matrix. minus R means dimension of domain minus rank. डायमेंशन ऑफ डोमेन मतलब कि क्या हुआ? नंबर ऑफ कॉलम्स. रिमेंबर ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए माइनस रैंक. सो इस वाले एग्जांपल में हमारी नलिटी कितनी होगी बताइए जरा. जो एग्जांपल हम कर रहे हैं नलिटी कितनी होगी? 1. सुबह सुबह जो है ना, नाश्ता वास्ता किए हो कि नहीं किए हो? सॉरी सर, 2 होगा सर. क्यों होगा 2? एन कितना है? एन सर कितना 4 है इस माइनस मैट्रिक्स 1 3 में? होगा सर. सर 4 है. एन 4 है. रैंक कितना है इसका? 2. सो 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2. 2. तो नलिटी कितनी हुई? 2. 2. ठीक है. सो Yes, दैट sir. मींस नल स्पेस की बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 2. 2. 2 एलिमेंट होंगे. जितने डायमेंशन होते हैं उतने ही एलिमेंट होते हैं ना बेसिस में. अब ये क्वेश्चन ये कि लिखेंगे कैसे, इसको सोल्व करना है. कितने सॉल्यूशन होंगे इस सिस्टम के बेटा? 4. किसी सिस्टम के 4 सॉल्यूशन होते हैं. सर मतलब सॉल्यूशन या तो X यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होंगे, Infinitely या सॉल्यूशन नहीं होगा. 3 ही केस होते हैं ना लीनियर सिस्टम में. infinitely many. इनफाइनाइटली Infinitely मैनी many. होंगे. ठीक है. इस सिस्टम के सॉल्यूशन निकालना बेटे ना आराम से आज ना.
होमवर्क में दे रहा हूं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हो इसके, सोचना। एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। अभी जो है ना, सो अभी जो है मेरे ये कोवर्कर हैं ऋषभ, ये आपको जो है ना ये कुछ एग्जाम्पल कराएंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो आरईएफ कैसे निकाल सकते हैं, रैंक कैसे निकाल सकते हैं, और फंडामेंटल ये रो स्पेस और कॉलम स्पेस के। एंड वी विल मीट ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे 8 to 10। सो ये लेक्चर में यहाँ पे ही रोक रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अभी विद दिस प्रॉब्लम दैट प्लीज लर्न हाउ कैन वी फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, फाइन। और उसके बाद हम नलिटी निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने केवल बेसिस ऑफ नल स्पेस निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीख लिया, नलिटी सीख लिया कि नलिटी कैसे निकालेंगे। रैंक निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स में से रैंक माइनस कर देंगे, नलिटी आ जाएगी। तो नल स्पेस में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने की नलिटी होगी। अब वे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कैसे लिखेंगे ये वेक्टर, दो वेक्टर, वो लर्न करेंगे मंडे को आराम से। सर हम लोग का तो मिड सेम भी होने वाला है ना सर? हाँ, तो मिड सेम होगा तो क्या होगा, तो फिर जितना क्लास मिड चलेगी सेम तक सर? पढ़ाएंगे उतना ही आएगा मिड सेम में, ठीक है। जितना ओके सर। जो है जूही मैडम ने पढ़ाया है और जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना सब आएगा मिड सेम तक। ओके ओके सर। मिड सेम का मतलब ये नहीं है कि आधा ही आएगा, जितना भी पढ़ाएंगे उतना ही आएगा। सिलेबस पूरा होगा, चिंता नहीं करो, लर्न करते रहो। As I said, if you really want to learn linear algebra, that means 6 keywords you must understand. Otherwise, there is no benefit of this 102 course. Vector space, subspace, उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैन, बेसिस, डायमेंशन। जिसपे ये 6 चीज नहीं आती, नहीं समझा, तो इस लेक्चर सीरीज का कोई फायदा नहीं है। अच्छे से पढ़ो बेटा, क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पल्स करो, और ये 6 चीज हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, दिखना चाहिए मैट्रिक्स को देखते ही। 4 फंडामेंटल सब स्पेसिस, ये सब, क्योंकि आप अगर आपको बेसिस ही नहीं पता कि क्या है तो फिर कोई फायदा नहीं है चीजों को करने का। इसलिए मैंने जूही मैडम को बोला था कि जो है थोड़ा ज्यादा टाइम दे वहां पे वेक्टर स्पेसिस पे। हाँ, वेक्टर स्पेस, बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, ये सब क्या होता है। अभी कुछ एग्जांपल करेंगे आरईएफ के और आरआरईएफ के, एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर ऑन मंडे। अभी आप लोग भी चाहो तो 2-3 मिनट का जो है ना ब्रेक ले सकते हो। आफ्टर 2 मिनट्स ऋषभ विल स्टार्ट some examples. ओके सर।
Hello everyone. Am I audible? Yes, sir. So, as the sir said, so I will show you some example for RREF form and REF form. So, everyone know what is REF and RREF? Hello. Yes, sir. यस सर सबको पता है REF और RREF क्या होता है? Yes, sir. तो क्या डिफरेंस है? सो मान लो कि अगर REF, I have to find REF and RREF. सो डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? Sir, RREF में all pivots are one, लेकिन REF में different भी हो सकते हैं. Okay, so suppose I will give you one example. Let 1 1 2 0 0 1 0 0 1 and 1 2 wait 1 0 0 0 1 0 0 0. Which one is RREF and which one is REF form? Or Sir, both are REF में sir all मतलब ये जो नॉन जीरो रोज है उसके नीचे सब जीरो होना चाहिए. तो वो REF तो and what third about row above? में What about above? तो जैसे REF में क्या होता है कि जैसे ये पाइवेट एलिमेंट ये है पहला, इसमें ये है, ये भी पाइवेट एलिमेंट. yes sir. REF में सबसे पहले तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए. ओके, REF और RREF दोनों में ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जानते हो? A Yes, matrix sir. is यस said to be upper triangular if its all element below the diagonal element, below the principal diagonal should be Is zero. 0. Okay, and in REF all the element may be pivot element 1 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं in REF में. ओके, बट अगर REF में केवल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो हम उसको बोल देंगे REF फॉर्म. ओके, और RREF में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो पाइवेट एलिमेंट है इट शुड बी 1, राइट? Yes, sir. और पाइवेट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट और ऊपर के एलिमेंट वो भी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, राइट? सो लाइक इसमें यहां पर जो Yes, sir. सेकंड पाइवेट एलिमेंट 1 है उसके नीचे तो 0 है लेकिन ऊपर 0 नहीं है, तो इसलिए ये RREF तो नहीं है. ओके, this is not RREF, so it is in REF form. Here it is RREF form, right? यस सर Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है कि क्या RREF में हमेशा this is a matrix, what we called this type of matrix आइडेंटिटी मैट्रिक्स identity. So in RREF क्या हमेशा always identity matrix ही बनेगी? No, sir, not necessary. No, sir. So this statement is true. Is RREF always identity matrix? Yes or no? No. 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 So can anyone give me example that the RREF a matrix in RREF form but it is not identity? कोई बोल सकता है? Yes, sir. In previous example, Which one? so 1 3 0 minus 1 0 0 1 1 ये वाला? 0. Yes, sir. No, sir. फिर ये वाला? Yes, sir. ऊपर वाला. Okay, so this is in RREF form but it is not identity matrix, right?
So let we start with how to find REF form. A equal to 1 1 1 1 1 0 and 1 0 0. So पहले कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? So पहले क्या चेक करेंगे? First of all, what we have to check? If Pivot. there is any First zero, pivot. so suppose if there is any zero row, then we have to put in the last row, right? So here is no zero row. Now we check the first pivot element. So what is the first pivot element? So 1. Right. So now we have to, what we have to do now? We have to do all the entry, all the non-zero entry below the pivot element should be 0. 0. So what is the operations we made so that the R2 की पहला एलिमेंट और R3 का पहला एलिमेंट 0 जाए? बताओ, ऑपरेशन बताओ. So R2 को R1 से माइनस करने से. वेरी गुड. सो ऑपरेशन जो हमेशा होता है ना वो R2, जैसे R2 पे ऑपरेशन लग रहा है, सो यहाँ पर पहले R2 से स्टार्ट होगा, R2, फिर उसके बाद डबल कोलन R2 माइनस R1, राइट? सिमिलरली दूसरा ऑपरेशन क्या होगा? R3 minus R1. यस, किस पे? R3 से स्टार्ट हुआ, R3 माइनस R1. तो अब इसको ऐसा मत लिख देना कि R1 से स्टार्ट हुआ एंड R3 माइनस R1. दिस इज रॉन्ग. दैट मीन्स ये R1 पे ऑपरेशन लग रहा है और ये वाला ऑपरेशन कहां लग रहा है? R3 पे. तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो हमेशा जहां पर ऑपरेशन लगाना है वहीं से स्टार्ट करते हैं. R3 such that R3 minus R1. Now what will be the matrix? Sir 1 1 1 1 1 1 0 0 minus 1. right, and 0 minus 1 minus 1. very good. Now क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हो गई? No, sir. No, sir. Then what we have to do now? Interchange the सर third R2 row को and R3 से second row. एक्सचेंज कर दीजिए. Yes, R2 exchange by R3. So now 1 1 1 0 minus 1 minus 1 and 0 0 minus 1, right? Next, is this in upper triangular form? Yes, sir. Yes, sir. What are the pivot element? 1 minus 1 1 minus 1. and minus 1 minus 1. minus 1. Okay, got it my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So have you done eigenvalue eigenvectors? Have you done? No, sir. No. Okay. सर क्वेश्चन क्या बोले? Have you done No, sir. No, eigenvalues and eigenvectors? Eigenvalue eigenvector हो गया क्लास में? No, sir. No, No, sir. No, Okay. sir. Okay. कोई बात नहीं. So rank is done in class, in your class? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Rank of a matrix is done? Yes, sir. Okay. Nullity of a matrix is done? No, sir. अभी Yes, स्टार्ट sir. हुआ है. अभी ले मंडे. just हुआ. हाँ, तो रैंक और नलिटी में वही तो है, तो होता है ना कि स्टार्ट हुआ है, मतलब हो तो चुका ना, अभी आज की क्लास में हो चुका. Yes, sir. हुआ है थोड़ा. So can you find the rank of this matrix? Yes, sir. Rank of this matrix is 3. And what is the nullity of this matrix? 0. 0, right. So why REF and RREF are so important? Because they can easily find the rank of number of non-zero pivot elements. तो अगर आप किसी मैट्रिक्स के REF फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसके नंबर ऑफ पाइवेट एलिमेंट काउंट कर लो, वही उसकी रैंक हो जाएगी. अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें नंबर ऑफ पाइवेट एलिमेंट कितने हैं? 3. 3. 3 है, तो 3 रैंक हो जाएगी इसकी. ओके.
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड रैंक। और रैंक फाइंड हो गई तो हम नलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। यस सर। राइट। सो नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट 1 2 3 0 2 4। अच्छा उससे पहले, इस एग्जांपल से पहले इसको आरआरईएफ में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी को आरआरईएफ में कन्वर्ट करने के लिए, तो आरआरईएफ में कन्वर्ट करने के लिए कैसे क्या करेंगे बताइए? सर सेकंड पिवट के ऊपर 0 होगा, मतलब -1 के ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। So what will be the operation? And what about this third pivot? थर्ड पिवट के ऊपर भी दोनों 0 होंगे। यस सर होंगे। तो करो फिर ऑपरेशन बताओ। सर सेकंड में R2 plus R1। क्या हुआ? All pivots should be 1. Yes, all pivots should be 1 also. Right. So now what we have to do? First 1 बनाओगे या फर्स्ट पहले क्या करोगे? 1 बनाएंगे। चलो पहले 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे बताओ? R2 पे क्या ऑपरेशन लगाऊं? -R2। R2 into -1 और R3 पे सब वही -1 इंटू करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 1 1 0 1 1 एंड 0 0 1। राइट। ठीक है। यस अब नाउ ऑपरेशन बताओ। सर R1 goes to R1 R1 minus R1 में से R1 माइनस R2। यस सर। और दूसरा R2 में is equal to R2 minus R3। यस। सो यह क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। सॉरी 1। So these are the pivot element। सभी के ऊपर क्या है? पाइवेट एलिमेंट के ऊपर भी 0 है, पाइवेट एलिमेंट के नीचे भी 0 है। सो दिस इज इन RREF फॉर्म। राइट। ओके। यस सर। सो नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। Yes, so the second example is if A equal to 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5। सो क्या आप इस मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं मेरे को? यस सर 4। कैसे? फोर कैसे हुई? 4 पाइवेट सर एलिमेंट पहले कहाँ है? इसके 4 पाइवेट। हाँ सर इसके पहले पिवट निकालने पड़ेंगे सर, फिर पता चल पाएगा कैसे इसके रैंक होंगे। तो 4 कैसे बोल दिया? बिना कुछ किए 4 बोल दिया है। फिर मैं तो ऐसे बोल दूंगा 25 बिना कुछ किए ही।
So first, what we have to do? What we have to do? We have to convert into REF form, right? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Then we can tell about the rank of the matrix. So चलो कन्वर्ट करो फटाफट, ऑपरेशन बताओ। ऑपरेशन बोलिए। R2 minus 2R1 वेरी गुड। R2 minus 2R1, R3 में R3 minus 3R1 3R1 राइट। नेक्स्ट R4 में R4 minus 6R1 6R1। So you are noting down or not all the things? Yes, sir. Yes, sir. अब फटाफट Yes, ये sir. ऑपरेशन करने के बाद मुझे जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो बताइए। इन ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो मेरे को बताइए जल्दी से, इन 2 मिनट्स। बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैथ्स के स्टूडेंट फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। देखते हैं कौन फास्ट कैलकुलेशन करता है। सर 1 2 3 0 एक सेकंड रुक जाओ। 1 2 3 0 0 0 minus 3 2 0 minus 4 minus 8 3 and 0 minus 4 minus 11 5। बाकी किसी का कुछ अलग आया है क्या? नहीं सर सही है। सेम आया सर। वेरी गुड, Sir, same. इट इज करेक्ट। सेम आया वेरी सर। गुड। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा बताओ? व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन? सर अब सेकंड रो में पिवट चेक करना है। तो फर्स्ट का तो मिल गया, सेकंड का क्या है? सर सेकंड रो में पहला 0 आ रहा है तो माइनस रो -3 एक्सचेंज कर सकते हैं Minus सर सेकंड यहाँ रो पे। में पिवट -3 है। सो इसमें अभी हमारे पास थर्ड रो में पिवट -4 आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इंटरचेंज करना Exchange पड़ेगा। सर वो एक्सचेंज एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो एक्सचेंज कर दो। 1 2 3 0 0 -4 -8 3। क्या मैं फोर्थ को भी सेकंड से इंटरचेंज करूं क्या? क्या मैं फोर्थ रो को भी सेकंड से इंटरचेंज करूं क्या? यस सर। क्यों? कर दीजिए सर। क्यों कर दीजिए, मतलब क्यों करना है? लेकिन सेकंड को सबसे लास्ट में लेके आना है। जब थर्ड पे हमारे पास पिवट एलिमेंट आ रहा है तो क्यों करना है? हमें क्या देखना होता है? सेकंड रो में सेकंड पोजीशन पे, थर्ड रो में थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। पहला जो पिवट आ रहा है ना यहाँ पे, तो जरूरत ही नहीं है अभी करने की। अब बताओ कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? सर R2 minus R4 R2 पे लगाना है। सॉरी R4 minus R2 R4 पे लगाना है एंड R4 R4 minus माइनस R2। ठीक है, बताओ Yes, आगे। sir. और तो क्या हो जाएगा बताओ? वन 2 3 0 बताओ जल्दी, मैट्रिक्स बताओ क्या आएगा? 0 -4 -8 3 0 0 -3 2 हाँ माइनस नहीं 0 0 0 minus 3 2 0 0 minus 3 2 अब ये दोनों क्या है आपस में? सेम है।
सेम है। सेम का मतलब क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बोलते हैं। जो अभी आपको पढ़ाया गया है वो बताओ ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो हो गए ना आपका? यस सर। यस। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा सर। लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं? ये 0 0 -3 2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 × 0 0 -3, 2। तो ये 1 मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। अगर यहाँ पर 6 और 4 होता, -6 4 होता, तो 2 मल्टीप्लिकेशन होता। तो दे आर LD। ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है? राइट सर। यस सर। दे आर इन LD। सो LD है, तो उसके बाद बताओ आगे क्या होगा। यहाँ पर पेज का रिस्ट्रिक्शन बता रही है। नेक्स्ट बोलो, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, आगे बताओ, नेक्स्ट फॉर्म बताओ। नेक्स्ट आगे क्या बनेगा, कौन सा ऑपरेशन लगेगा? इसके बाद तो सर आइडिया नहीं है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नहीं पता। R4 - R3। हाँ हाँ, R4 पे ऑपरेशन लगाओ, R4 - R3, और R2 पे भी ऑपरेशन लगा सकते हो पहले चाहो तो, या पहले इसको फिर R3 को कन्वर्ट कर लो। R3 पे लगाओ R3 अपॉन में -3। ये दो ऑपरेशन लगाने के बाद बताओ क्या बनेगा मैट्रिक्स। पहले ये वाला ऑपरेशन लगेगा, पहले ये ऑपरेशन लगाओ, उसके बाद ये ऑपरेशन। तो इसके बाद क्या मैट्रिक्स आएगी, इसके बाद क्या मैट्रिक्स आएगी, दोनों के बाद बताओ, एक साथ मत लगा देना। हो गया? यस सर। यस सर। क्या आई बताओ मैट्रिक्स। फर्स्ट रो में 1 1 2 3 0 0 -4 एक -8। सेकंड रुको। ठीक है, तो पेज की रेस्ट्रिक्शन हो रही है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको मिटा के, ठीक है? इसको हटा दूं मैं यहां से,
सर ये पीडीएफ सेव करके इसको न्यू में ओपन कर सकते हैं। न्यू में ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन सर इसको सेव कर दीजिए, फिर इसको न्यू में ओपन कर ठीक है, लीजिए, इसको वो मैं सेव खुलना कर देता रहेगा। हूँ। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ इसको। चलो न्यू फाइल, न्यू फाइल पता नहीं यार कहाँ से ओपन होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप देखिए न्यू फाइल कहाँ से ओपन है कि भी देखता हूँ, पूछता हूँ मैं। हाँ बताइए, आप इधर बताइए, इधर लिख देता हूँ मैं। बोलो क्या है? 1230 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 -4 -8 3 नेक्स्ट 0 0 0 0 हाँ 2 sorry -2/3 0 last 0 0 या 1? so 0 0 0 1 sorry 1 Yes, sir. 1 yes sir और लास्ट रो क्या जाएगी? वो सब 0 2/3 और लास्ट रो 0 होगा। हाँ, अब एक बार और ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा? R2 में भी क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा ना। तो R2 में R2 बाई -4, राइट? yes तो sir बताओ क्या आएगा? 1 1 2 2 3 0 3 0 0 1 1 2 2 -3/4 -3/2 0 0 1 so -3/4 -2/3 3/4। हाँ, अब उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई है? ये REF फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गई, राइट? यस सर। REF फॉर्म में तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक 3 सर। 3 कैसे काउंट किया? सर नंबर ऑफ so पाइवट 1 एलिमेंट। 1 1 नंबर ऑफ पाइवेट नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो पाइवेट एलिमेंट बोलो पूरा। अच्छा, REF में तो यही कन्वर्ट हो गया था, कहां पर? इसको केवल इतने यहां तक ये ऑपरेशन लगाया ना, R4 -R3, तब भी वो REF में कन्वर्ट हो गया था। ये एंड ये पाइवेट एलिमेंट हो गए थे। हाँ सर। REF में तो यही कन्वर्ट हो गया था। ओके सर अभी ये RREF में नहीं कन्वर्ट हुआ सर, इसके जो पिवट के ऊपर वाले एलिमेंट है वो 0 नहीं, होंगे। RREF नहीं बोल रहा मैं, REF बोल रहा हूँ। REF में यहीं तक कन्वर्ट हो गया जब R4 -R3 लगाया था अपन ने। यस Now सर, यहाँ for तो RREF we are converting this. We are making the pivot element 1 and all the elements above and below the pivot should be 0. Right? यस सर। Yes or no? yes sir अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन क्या क्या लगेंगे वो आप लगाइए और इसको बताइए जल्दी से। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या क्या लगेंगे? सर R1 में लगेगा। आप हाँ बोलिए। R1 में R1 -2 टाइम R2। हाँ सर, एक सेकंड, इसमें पेज ऐड कैसे करना है? ठीक ठीक। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोलना लास्ट मैट्रिक्स क्या बनी थी? लास्ट मैट्रिक्स बोलना। 1 3 2 3 0 1 2 3 0, राइट। सेकंड रो के एलिमेंट है 0 1 2। हाँ
-3/4। राइट। थर्ड रो के एलिमेंट है 0 0 1 -2/3। यस। रो 4 0। थैंक यू सो मच। नाउ व्हाट विल बी द ऑपरेशन R1 पे? R1 -2 टाइम R1 R2 राइट। एंड R2 में कोई ऑपरेशन लगेगा? लगेगा सर इसमें भी। हाँ, तो R2 में से R2 - 2 टाइम R3 राइट। ठीक है, अब बताओ कि क्या बन के आया, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ क्या है, देखते हैं कौन फास्ट है। हो गया? यस सर, कंप्लीटेड सर। बोलिए। 1 0 -4 -4 -3/4 -4 0 1 0 0 1 0 7/12 यस 0 0 1 -2/3 0 0 0। वेरी गुड। अब क्या ऑपरेशन लगाएंगे? सो वहाँ -4 की जगह -1 होगा ना? यस सर। -1 सर होगा। -1 होगा। और सर वहाँ पे -3/2 होगा फर्स्ट रो में। -3/2 सर -3/4 होगा, की जगह। 3/2। हाँ, तो अब क्या ऑपरेशन लगेगा? अभी भी क्या RREF में कन्वर्ट हो गया? सर अभी -1 को नो सर गैप कर लो। सर +3/2 होगा। देख लो अभी भी। +3/2। सिर्फ +3/2 होगा फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट। ओके, अब क्या अभी भी RREF में कन्वर्ट है? नो सर। सो व्हाट विल बी द ऑपरेशन? सर R1 को R3 से ऐड करेंगे। R1 goes to R1 + R3। तो क्या बन जाएगा? 1 0 0 और ये वाला एलिमेंट बताना 0 1 0 0 0 1 -2/3 0 0 5/6। हाँ 5/6। ठीक है, तो ये RREF हो गई। समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास RREF। अभी आपको क्या पढ़ा गया था? रो स्पेस और कॉलम स्पेस, राइट? यस सर। रो स्पेस और कॉलम स्पेस। सो रो स्पेस क्या होता है? पिवट्स के रो। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, या पिवट्स की रो बोलते हैं क्योंकि पिवट्स ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो को हमें शो करता है। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो, तो इसमें नंबर ऑफ पाइवेट एलिमेंट कितने हैं? 3। 3।
सो सबसे पहले जब भी आपको रो स्पेस कॉलम स्पेस निकालना हो, आप पहले उसको RREF में कन्वर्ट करना है। किसमें? RREF में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, REF में नहीं, RREF में। ओके ओके सर। और नंबर ऑफ पिवट्स जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो रो होगी वो ही क्या कहलाएगा? रो स्पेस कहलाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो इसमें पिवट्स के करस्पॉन्डिंग रो कौन कौन सी हैं? 1 2 3 1 2 3। और इसके एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे देखना। तो रो स्पेस में हमारे पास क्या होगा? वन जीरो जीरो 5/6, ठीक है। फिर 0 1 0 7/12। और तीसरा कौन सा होगा? 0 0 1 -2/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? रो स्पेस, राइट? यस सर। और कॉलम स्पेस क्या होगा? कॉलम स्पेस में भी आपको रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, दैट मींस RREF ही निकालनी है। फिर से नंबर ऑफ पाइवेट एलिमेंट चेक करने हैं। अब इन पाइवेट के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम। तो पहला पाइवेट एलिमेंट किस में आ रहा है? कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में कॉलम था वो कौन सा था? ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब ये जहां से हमने RREF में आया। तो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 1 2 3 6 1 2 3 6। सेकंड, दूसरा फिर सेकंड पाइवेट एलिमेंट कौन से कॉलम में आ रहा है? सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स में कॉलम कौन सा है? 2 4 2 4 2 8। सिमिलरली थर्ड में भी थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम, तो थर्ड के करस्पॉन्डिंग। तो ये तीन एलिमेंट जो होंगे कॉलम स्पेस जो होगा आपका वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 1 2 3 6, 2 4 2 8 एंड तीसरा 3 3 1 7। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सो रो स्पेस में तो क्या करना है कि RREF में कन्वर्ट करो। RREF कन्वर्ट करने के बाद पाइवेट एलिमेंट वाली जो रो है वही हमारे पास क्या होगा? रो स्पेस, basis of the row space, and basis of the column space are check the pivot element in which column in RREF। और फिर उसके बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स पे चले जाओ। ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो कॉलम पाइवेट कॉलम का है वही कॉलम उस कॉलम स्पेस का बेसिस होगा। अंडरस्टूड? यस सर। अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल दे दूं तो कर दोगे? यस सर। चलो ठीक है, तो एक एग्जांपल और लीजिए। फिर से वही बात आ गई ना। ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए। ये लीजिए A = 1 1 1 2 3 2। इसके जल्दी से रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस बताइए। रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस जल्दी से। सर इसका रो स्पेस होगा 1 0 1 पहला, दूसरा होगा 0 1 0। सो रो स्पेस होगा इसका 1 0 1 एंड
0 1 0. 0 1 0. And what about the column space? Column space 1 2 फर्स्ट वाला और सेकंड वाला 1 3. कॉलम स्पेस क्या होगा? 1 2 1 2 एंड 1 3. 1 3. क्या सबका यही आया है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसको कराने की जरूरत है या नेक्स्ट एग्जांपल दूं? नेक्स्ट एग्जांपल सर. ठीक है, तो एक ये लीजिए, इसमें बताइए 1 1 1 2 2 3 2 5 1 1 1 2। बताइए इसके रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। जल्दी से। सर इसका रो स्पेस होगा 1 0 0 0। दूसरा होगा 0 1 0 0 0। यस सर। अच्छा, और दूसरा होगा 0 1 0 0। ओके, और कॉलम स्पेस? कॉलम स्पेस होगा 1 1 1 2। 1 1 1 2। दूसरा 2 3 2 5। 2 3 2 5। और भी हो गए? इतने ही होंगे? इतना ही होंगे सर। अच्छा, और बाकी किसी का? मेरे इतनी ही आई। हाँ, तुम्हारी इतनी आई। और बाकी किसी का? बता। सर मेरा रो स्पेस 1 0 0 0 और 0 1 1 0 आ रहा है। 0 1 1 0। ओके। यस और कॉलम स्पेस? सर कॉलम स्पेस तो वही सेम। अच्छा, तो इसका मतलब आप दोनों का ही गलत है सबका। कॉलम स्पेस ठीक है, लेकिन ये गलत है। मैंने क्या बोला था? नंबर रो ऑफ स्पेस गलत। रो स्पेस इज गलत, रॉन्ग है ये। मैंने क्या बोला था? इसको आर आर क्या है आपकी, बताओ। सर रो स्पेस मेरा आया 1 आर 2 1। बोलो पहले क्या आई? आर क्या आया? यस सर, RREF आया 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 और लास्ट के दो रो 0 0 0। तो अब इसमें नंबर ऑफ प्राइवेट एलिमेंट कौन कौन से हैं? सर 1 1 1। और इनका कॉरेस्पॉन्डिंग रो क्या है? सर गलती से बता दिया, सॉरी सर। कॉरेस्पॉन्डिंग रो क्या है? इसमें 4 एलिमेंट है 1 0 1 0 1 0। तो ऐसे गलती थोड़ी करेंगे। ये 1 0 1 होगा और दूसरा 0 1। यस 1 0। देन
Yes, sir. Understood my point? Yes, sir. यस सर, लगता है सर ज्यादा हो गया आज। आज ज्यादा हो गया, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। फिर इन द नेक्स्ट क्लास सर विल टेल यू द नल स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस, एंड यू कैन डिस्कस विद देम। ओके, सबको समझ में आया? यस Yes, सर, Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, okay. So Thank you, recording sir. is on or is it stopped? So On I will है stop. recording. I will stop the स्टॉप कर recording दीजिए। ओके सर, ऑफ कर दीजिए। and